Welcome to Aur Batao. This is Kritat. This is Ravi. This is Ayush. This is Aranim. This is Saket. Let's get it started. Today we are talking about AI and machine learning from a computer scientist's perspective, how they work, what is fueling the current renaissance, their applications and their impact to society. Please subscribe and follow for more such topics. Thank you and enjoy. This is AI from computer science interpretation. AI kind of 60s में term invent हुआ था, but since then it has been picked up by many other fields, cognitive sciences, psychology, behavioral sciences, क्योंकि सबको ये term काफी fascinating लगता है और फिर लोग consciousness और उस सब में भी relate कर देते हैं, metaphysics. My interpretation is it's the science of writing a program which outputs a program to solve a problem. So it is kind of one level separated from the actual program जो run कर रहा है. हम उसको नहीं write कर रहे, हम एक higher level program write कर रहे हैं. Program is just a software that calculates the correct output from the input. Over time हुआ क्या है कि जो writing the program which you are writing has become easier and more standardized. And why do you want to do this is because you're creating leverage. इसका high level disadvantage है harder to maintain, harder to understand. So it's a special class of computer programs, but it is only one of the many tools. So जैसे for a plumber or an electrician, there are so many tools they use and every tool has its purpose. So similarly, AI is also one of the tools. It's not like it can apply everywhere. And although it has many, like it's maybe a hammer, which is very, very useful in many cases, almost all cases. And it is a set of algorithms and frameworks which for problems which don't have a closed form solution. कि मतलब ऐसे कोई सॉल्व करके एक अच्छी सी इक्वेशन नहीं आ जाती जो उसमें प्लग करने हैं नंबर्स, और तो थोड़ा सा ओपन एंडेड प्रॉब्लम है जिसका कोई सोल्यूशन ऐसा है नहीं. और अगर उसको हम सॉल्व करेंगे हाथ से तो इट विल बी काइंड ऑफ लेबोरियस टू ले आउट एज केसेस एंड इफ एल्स बहुत सारे हो जाएंगे. तो इट इज़ वेरी हार्ड टू completely describe that by hand. And just like any technology like electricity, fire, computers, it kind of grows in relevance over time. कि मतलब अभी किसी ने AI की टेक्नोलॉजी बनाई, so 20 years later there can be an application जो कोई सोच नहीं सकता था. तो मतलब most technologies में एक S curve type का adoption होता है कि जैसे TV, electricity, automobiles, ये सारे for the first 20-30 years कोई भी use नहीं कर रहा. Then suddenly everyone starts using them and it saturates. तो इंटरनेट, पीसी, मोबाइल फोन्स तो अभी like 10-15 years ही हुए हैं और AI को तो शायद 5 years भी नहीं हुए, like the modern interpretation of AI. And then we can like some prominent sub disciplines AI में, like I think the most prominent अभी के लिए is machine learning, very recent and active area. And here the program A, like in that previous definition, basically designs B kind of to featureize inputs and produce outputs for an objective. तो इसका मतलब अब क्या है कि मतलब जो प्रोग्राम ए हम लिख रहे हैं वो बस प्रोग्राम बी ऐसा निकालेगा कि कोई भी इनपुट आए उस इनपुट को पहले ब्रेक डाउन कर दो इनटू सम फीचर्स विच आर डिफाइंड इन प्रोग्राम ए. कि मतलब जैसे अगर कोई फोटो है तो उस फोटो को कैसे उस फोटो के किस एस्पेक्ट्स को देखना है वो हम डिफाइन करेंगे, बट उस एस्पेक्ट्स का करना क्या है वो प्रोग्राम भी डिसाइड करेगी. I was gonna ask, like, what is the difference between ML and AI? You can think of AI and machine learning as like physics and quantum mechanics. कि दोनों का actually objective, physics का objective है to understand reality. Quantum mechanics is our best theory of reality. तो they are kind of different. मतलब अब हर जगह quantum mechanics लगाने की जरूरत नहीं है. कहीं कहीं मतलब simple Newtonian physics से काम चल जाता है. मतलब तो AI तो एक काफी umbrella term है. मतलब I don't think दो लोग को आप पूछोगे same answer देंगे. मशीन लर्निंग थोड़ा बहुत कॉन्क्रीट, और AI इनफैक्ट अभी पॉपुलर हुआ ही मशीन लर्निंग की वजह से. वो क्यों हुआ हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे. बट अभी और थोड़ा ये एक्चुअली बाउंड्रीज काफी हेजी इसलिए भी हैं क्योंकि काफी डोमेन्स में तो रिसर्च चल ही रही थी, जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन की लाइक इमेज प्रोसेसिंग, और ये सब में 20-30-40 साल से रिसर्च चल रही थी. पिछले 10 साल में मशीन लर्निंग टेक्निक्स ने उन सब को ओवरहॉल कर दिया. मतलब तो मशीन लर्निंग से हुआ क्या कि जो आप प्रोग्राम ए लिखने की टेक्निक्स थी वो ऑलमोस्ट स्टैंडर्डाइज हो गई. तो जैसे जावास्क्रिप्ट कोई वेबसाइट बनाता है, वो वेबसाइट के अगर कोई फ्रेमवर्क बना दे जिससे वो आपको बस अब 2-3 लाइन लिखनी है कोड की और वो पूरी वेबसाइट बन जाएगी. तो मशीन लर्निंग इज दैट फॉर AI.
कि आप मशीन लर्निंग की कुछ लाइब्रेरीज यूज करो और काफी चीजें सिंपल हो जाती हैं. अब विद इन इट देयर इज अ लॉट ऑफ थ्योरी कि जो ये एल्गोरिदम्स हैं मशीन लर्निंग के अंदर भी, जैसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग, गैन, रिग्रेशन, तो ये सारी जो चीजें हैं ये ओवर द इयर्स बनती गई और ये सब फील्ड्स हैं इनमें जिसमें जो सारी मशीन लर्निंग के अंडर आते हैं और एप्लीकेशन मशीन लर्निंग की ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम में है. जहाँ पे भी आपके पास डेटा है वहां पे आप ये लगा सकते हो मशीन लर्निंग, तो इसलिए बहुत ब्रॉडली एप्लीकेबल है. बट इसके ये भी हर चीज सॉल्व नहीं कर सकती. तो विद इन एआई देयर आर अदर थिंग्स जो मशीन लर्निंग से सॉल्व नहीं होती, जैसे रोबोटिक्स है. ये क्यों? बिकॉज इसमें थोड़े अदर कंसर्न्स भी हैं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से इंटरफेस करना है और थोड़ा बहुत एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग है. डेटा नहीं है कोई, मतलब जैसे व्हेन अ बेबी इज बोर्न वो कैसे लर्न करता है, इट्स नॉट ऑलवेज जस्ट विद डेटा. सिमिलरली जैसे आप ड्राइविंग करते हो तो यू डोंट हैव टू ड्राइव मिलियंस ऑफ माइल्स टू बी अ गुड ड्राइवर. आपके पास बहुत एक आप रेलेवेंट अदर डोमेन से एक्सपीरियंसेस लेते हो, तो वो दैट इज नॉट एमिनेबल फॉर मशीन लर्निंग. तो वहां पे लोग अलग टेक्निक्स ट्राई कर रहे हैं. और फिर लाइक कुछ मशीन ओल्ड लर्निंग टेक्निक्स. मशीन लर्निंग की डेफिनेशन ये सही है कि इट्स बेसिकली डेटा पे चीजें ट्रेन करने वाली चीज, जस्ट जो रूल बेस्ड सिस्टम्स है उसमें बिल्कुल. डेटा की जरूरत है. ओके. हाँ, तो मतलब मशीन लर्निंग का एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो प्रोग्राम ए आप लिख रहे हो वो सिंपली बस दो चीजें करता है. एक तो कि जो डेटा आ रहा है उसको इंटरप्रेट कैसे करना है प्रोग्राम बी के लिए, और किस एक कंस्ट्रेंट डिफाइन कर देता है या ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करता है कि उस जो आपने उसको ब्रेक डाउन किया उस डेटा को, वो फिर उसको आपको कंबाइन कैसे करना है. एआई अब हॉट टॉपिक इसलिए है क्योंकि दो रीजन हैं उसके. एक तो कंटिन्यूसली फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ मशीन्स. अगर आप देखो इन्फ्लेशन लाइक इन लास्ट 20 years, हाउसिंग और मेडिकल सर्विसेज have grown above inflation, but ये TVs और software they have actually come down. So बहुत cheaper होता जा रहा है over time to use more computers and software storage. तो एक तो पहले आप ज़्यादा processing कर सकते हो अब, और फिर मोर ओवर डेटा काफी एक्सप्लोड हो गया है. तो देर इज लाइक बिलियंस ऑफ आवर्स ऑफ यूट्यूब वॉच्ड एवरी डे, मिलियंस ऑफ यूजर इंटरेक्शन, स्क्रोल्स, एक एक कहीं आप एक सेकंड के लिए भी रुके किसी फेसबुक स्क्रीन पे तो वो भी लॉग हो जाता है. तो इस और इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव टू लॉग ऑल दैट क्योंकि बाद में यूज हो जाएगा. The reason AI is picking up so much steam right now because there's so much data, which was a हाँ, precursor of having of course. a good AI or ML system. या मतलब अगर आप इसको देखो लाइक कस्टमर्स हु बॉट दिस आइटम आल्सो बॉट, लिटरली हो क्या रहा है कि मैंने सपोज कोई 3 बुक्स खरीदी और अब मैं एक चौथी बुक कंसिडर कर रहा हूँ, तो वो लिटरली Amazon अपने पूरे डेटाबेस को स्कैन कर सकता है एफिशिएंटली फॉर अदर पीपल हु हैव बॉट दीज एग्जैक्ट 3 बुक्स, और फिर उन्होंने नेक्स्ट क्या बाय किया. ये बहुत मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बट लिटरली इट्स जस्ट स्कैनिंग दैट एंड फाइंडिंग रेलेवेंट रिकमेंडेशंस जस्ट बाय अ लुकअप हिस्टोरिकली. सिमिलरली नेटफ्लिक्स ने और क्या मूवीज मुझे दिखाई और लोगों को वैसी मूवीज दिखाई, फिर क्या हुआ. तो इट्स अ प्रिडिक्शन या रिकमेंडेशन टास्क. यूट्यूब में भी वही है. फिर एक्चुअली बट मशीन लर्निंग का एक काफी ऑर्थोगोनल ब्रेक थ्रू ये था इन इमेज एंड वीडियो एनालिसिस. जो सर्वेलेंस में ऑफ कोर्स लाइक आपने अगर फेस रिकग्निशन कर रहे हो तो यू कैन मॉनिटर कौन कहाँ जा रहा है. तो चाइना इज फेमस फॉर लाइक इंस्टॉलिंग बिलियंस ऑफ कैमरास एवरीवेयर और वो पूरे अपने सिटीजन्स पे रिकॉर्ड रखते हैं. तो दैट्स वेरी कॉमन. फिर मेडिसिन में भी अगेन लाइक यू कैन एनालाइज इमेजेस ऑफ एक्सरेज या other parts of the body to look for tumors या other things. तो radiologists जो काम करते हैं that can be done at scale cheaply by AI. And then another line of application is automated speech recognition. ये आपके devices हैं Alexa, Google Home जो कि voice को understand करते हैं. फिर finally like is AI harmful to society? Like technology तो neutral होती है, like we know it's how you use it. But the some dangers are automating jobs. We know that human judgment जहाँ इतना नहीं होगा वहाँ पे it can be replaced. Something that is repeatable or boring, those things can be replaced. It will usher in a new world order because USA and China are at least like 10, 15, 20 years ahead of other countries. तो जैसे USA और USSR का nuclear weapons पे हुआ था, AI could be that for these countries. But it will also create some jobs, make life simpler. As a silver lining, like for example 10 years ago app developer wasn't a job, Lyft driver wasn't a job, Airbnb host wasn't a job. 20 years ago YouTube content creator wasn't a job, data scientist wasn't a job. So if AI exists today, 10 years later maybe there are more jobs enabled, और होगा ही ऐसा थोड़ा बहुत.
And then can AI turn against humanity? Like in some sense it has, right? Sending us down rabbit holes, clickbaits, changing our mental perspective. Like kali main Quora pe gaya, this was the first result, right? Recommended for you. Why did Princess Margaret blah blah blah. मतलब मुझे क्या करना है इसका, मैं इसमें जाऊंगा अब and I will kind of develop some opinion, या मतलब time pass ही है, like this is so useless. But can it be a physical threat, like Terminator type scenario? That don't know, like can be a wild shot. Can you give me like a dumbed down version of what is the difference between like GPU और अभी जो TPU जो versus the quantum, like इन तीनों में main difference क्या है? यार मोस्टली जैसे सीपीयू होता है तो सीपीयू में कहाँ प्रोसेस कर रहे हैं, राइट? लाइक मोस्टली या तो अपने लोकल मेमोरी में डेटा उठा के प्रोसेस कर रहे हैं, तो दैट इज लिमिटेड बाय योर रैम, राइट? तो रैम में कितना है और वो नहीं है. जीपीयू में एक डेडिकेटेड हार्डवेयर है जो उसका खुद का रैम है, विच इज ओनली मेंट फॉर प्रोसेसिंग दिस थिंग, राइट? लाइक वो एक्स्ट्रा लोड नहीं ले रहा. तो सीपीयू क्या है, दूसरी चीजें भी चला रहा है, ये भी कर रहा है, तो उसमें डेडिकेटेड मेमोरी नहीं है, उसमें डेडिकेटेड एक्स्ट्रा मेमोरी है. whereas टीपीयू में क्या है, डेडिकेटेड एक्स्ट्रा मेमोरी भी है और दैट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि द कोर पार्ट ऑफ दिस थिंग इज लाइक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. तो उसमें ऐसे क्या बोलते हैं, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना वो बहुत ऑप्टिमाइज्ड है, तो वो फास्ट करना मींस एल्गोरिथम इज रनिंग फास्टर. सो दैट इज लाइक स्पेसिफिकली टीपीयूज आर मोर डिजाइंड फॉर दीस लाइक डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स एंड स्टफ, लाइक इट्स केटर्ड फॉर दैट. और क्वांटम से कैसे करोगे उसको, लाइक यस, क्वांटम तो फिर अलग ही रेल में है, वो तो भी किसी को पता भी नहीं है कैसे होगा. क्वांटम थोड़ी हवा में चीज है. क्वांटम में एक्चुअली प्रोसेसिंग ही बदल जाती है ना, कि like your bits are different, so how you will like put a regular algorithm into quantum, like there is some work on it, but अभी तक कुछ बहुत ज्यादा सब्सटैंशियल तो नहीं हुआ ML और quantum. NLP में पहले क्या होता था, बहुत ज्यादा लिंग्विस्टिक नॉलेज चाहिए होती थी, like you need to know like क्या प्रोनाउन है, नाउन है, to understand like वो लैंग्वेज के रूल्स वगैरह क्या है. तो बहुत ज्यादा ऐसे जो NLP लोग थे उनको ये सब भी बहुत नॉलेज रहती थी कि कैसे लैंग्वेज काम करती है, ये रहती है. तो दे यूज्ड टू मेक लाइक स्पेसिफिक रूल्स जो इनिशियली होता था, राइट? कि अच्छा यहाँ ये आ गया, यहाँ एडजेक्टिव आ गया, यहाँ प्रोनाउन आ गया, तो डू समथिंग एंड थिंग्स लाइक दैट. वो धीरे धीरे इवॉल्व होते होते लाइक उन्होंने वो जब जो फीचर्स को देखते थे, वो फीचर्स को फिर वो लीनियर मॉडल्स में डालने लग गए, जैसे SVM और इस तरह की चीजें, और उसको यूज करके प्रेडिक्ट करते रह गए. बट उसमें भी ऐसा था कि बहुत मुश्किल है स्केल करना, बिकॉज यू विल हैव टू लाइक राइट रूल फॉर एवरीथिंग एंड लाइक constantly new data is coming in, you will have to see what new stuff you have to look at it, so it is not a very optimal method. So lately इतना ज्यादा डेटा आ गया, स्पेशली दीज बिग कंपनीज, राइट? लाइक जैसे गूगल का पूरा वेब का डेटा है, तो जैसे मेरी टीम क्या करती है, मेरी टीम वेब, जैसे हम लोग एडवर्टाइजर वेब सेफ्टी के लिए काम करते हैं, तो जैसे पब्लिशर पेजेस को वी क्लासिफाई इनटू सर्टेन कैटेगरी. सो पब्लिशर का पूरा टेक्स्ट लेते हैं, जैसे कोई भी CNN.com या BBC.com जो भी हो गया, उसके पूरे पेज के कंटेंट को लेते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं टू सम कैटेगरी लाइक पॉर्न, लेट्स से गैम्बलिंग, देयर आर सम डिफिकल्ट कैटेगरीज. और उसके लिए हम क्या करते हैं, तो दिस इज लाइक सुपरवाइज ट्रेनिंग, राइट? तो हम सारे डेटा को लेके हम लोग पहले ह्यूमन लेवल कराते हैं, मतलब हम ह्यूमंस को पेज पढ़वाते हैं और बोलते हैं कि चलो इसको लेबल करो इन वन ऑफ दीज कैटेगरीज, एंड देन वी गेट द लेबल डेटा बैक. और उसके बाद हम एक न्यूरल नेट में वो फेंकते हैं वो पूरे डेटा को, एंड देन इन द एंड इट गिव्स अ प्रोबेबिलिटी स्कोर, राइट? एंड विद दैट प्रोबेबिलिटी स्कोर वी ट्यून आवर थ्रेशोल्ड्स टू से लाइक अच्छा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जैसे ये पेज पॉर्न है या नहीं है, इस टाइप की चीजें. तो दिस form of this is like very very basic neural net kind of approach. तो अभी जैसे NLP में क्या है कि like सिर्फ वर्ड अंडरस्टैंडिंग से तो काम नहीं होगा, मुझे पैराग्राफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मे बी लाइक सेंटेंस लेवल, मे बी इवन एट अ हायर लेवल अंडरस्टैंडिंग चाहिए. तो अगर जैसे मैं सिर्फ जो वर्ड्स है इन लाइन, अगर मैं सिर्फ उनके एम्बेडिंग्स ले लूं और उसको डाल दूं, तो लाइक मैं एल्गोरिथम विल स्प्लिट समथिंग, बट इट डजंट नो कि ऑर्डर ऑफ वर्ड्स क्या है, कौन सा वर्ड पहले आया है. जैसे मैं जब बोल रहा हूँ कि दिस बॉय is an asshole or something like that, तो पहले मैंने बॉय बोला तो जेंडर एसोसिएट कर दिया, वो सब मैं नहीं कर रहा ना, लेकिन वो साथ में मैं ऐड कर रहा हूँ, तो लाइक इट मेक्स सेंस, बट इंडिविजुअली इट डजंट मेक सेंस. तो देन देयर वाज सीक्वेंस मॉडलिंग आई. तो सीक्वेंस मॉडलिंग में जैसे RNN वगैरह है, तो उसमें क्या होता है कि यू लुक एट सीक्वेंस, तो लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं, तो पूरे वर्ड्स को देखते हैं, और देन लाइक फाइनली वो करते करते एक एम्बेडिंग निकलती है, तो उसमें पूरे सीक्वेंस का we talk about like the jobs that didn't exist before, right? And now they exist. AI ने कुछ चीजों को replace किया है, तो उसकी जगह पे नई opportunity भी create की है. I think when we do automate something and we get the gain out of that system, that gain needs to be passed on to people who are impacted. Like that's how I think about it. कि अगर कोई job automate हुई है और पहले 10 लोग करते थे, अब एक आदमी ही कर रहा है उसको, तो 9 लोगों का जो वो तुमने cost जो ROI तुमको मिला है, उसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत पड़ेगी ताकि लोग नई चीजें सीख पाए, राइट? लाइक जैसे अगर कोई
अभी ड्राइव कर रहा है, अब अगले दिन से अगर कोई बिना ड्राइवरलेस कार चलने लगेंगी, तो जो पैसा तुम बचा रहे हो दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टेड इन अ वे so that the people who are impacted they also get benefit out of it and then uplevel themselves. That's how I think about it. ये काइंड ऑफ रिलीजियस सा प्रिंसिपल लगता है मुझको, जो कैपिटलिस्ट टाइप के लोग बोलते हैं कि नया आएगा, नई जॉब्स आएंगी, नई जॉब्स फैलेंगी। अब अगर मंडला सर का वो खोलो, डॉक्यूमेंट खोलो, जॉब्स दैट डिड नॉट एग्जिस्ट 30 years ago आर लाइक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर एंड वेलनेस कोचेस। अभी यूएस में 20% लोग ड्राइविंग के प्रोफेशन में, दे विल बी आउट ऑफ जॉब्स, राइट? इंडिया में लोग पढ़े लिखे नहीं है, मतलब हाउ विल दे रीस्किल देमसेल्व्स to be able to do to drive? I'm not saying it's a bad idea to drive, like let machines drive if they are safer, if they do it faster, if they reduce cost, people will do it. वो benefit उन लोगों पे कैसे जाएगा? वो तो गवर्नमेंट This is how I think about it. तुम जो सोच रहे हो ना, तुम सोच रहे हो कि एक नया टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो गया, वो सडनली सब जगह इम्प्लीमेंट हो जाता है. That's not how it works, right? So it's always gonna be like a progressive thing जो gradually impact करेगा लोगों को. तो जैसे यहाँ पे मान लो तुमने ड्राइवरलेस कार्स चला दी, इंडिया में इट्स नॉट गोना वर्क बिकॉज़ द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट देयर, राइट? तो जैसे जैसे इंफ्रा इंप्रूव होगी इंडिया में, व्हिच इज अ प्रीरिक्विजिट टू हैविंग अ ड्राइवरलेस कार, द पीपल विल आल्सो लर्न न्यू थिंग्स, राइट? क्योंकि कुछ लोग क्यों नहीं शिक्षित हैं इंडिया में, जैसे मेरे गांव में इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं था 5 साल पहले तक, तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो इंटरनेट की क्या बात करोगे, राइट? तो अगर इंटरनेट अगर तुमको वहां पे करना है तो इलेक्ट्रिसिटी लगानी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो लोग नई चीजें सीखेंगे. So they are all good together. That's how I think about it. 0 to 1 नहीं है कि एक बार यहाँ से स्विच किया और वहाँ पे भी गाड़ी चलने लगेगी, ऐसे थोड़ी होगा. Completely agree with Saket sir कि like machine learning will definitely not be the answer for AGI because हम लोग सिर्फ डेटा से तो सीखते भी नहीं है, like वो तो एक specific type of learning है, like analogy को ले लेके like transfer learning लगा के, but काफ़ी चीज़ें हम first principles से सीखते हैं, intuition से सीखते हैं, और एक sort of फिर वो भी aspects आ ही जाते हैं consciousness और डिजायर के कि मीनिंग ऑफ लाइफ की कोई क्यों जी रहा है. और इस पे जैसे रॉजर पेनरोज एक बंदा है, वो उसका एक ऑब्जर्वेशन ये है कि ह्यूमन ब्रेन में दो जो मेन पार्ट्स हैं, सेरेब्रम और सेरेबलम. तो मोस्ट जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, जो जिसको हम मसल मेमोरी को एट्रीब्यूट करते हैं, जो इंस्टिंक्ट टाइप की चीजें होती हैं, वो सेरेबलम में होती हैं. वो थोड़ा एनकोड हो जाता है और सेकंड नेचर बन जाता है. और जो थिंकिंग पार्ट, जो रीजनिंग पार्ट है, वो सेरेब्रम है. तो अगर हम ब्रेन एक्टिविटी देखें तो ज़्यादा सेरेब्रम में होती है, बट मोस्ट जो हम सीमिंगली इंटेलिजेंट डिसीजन ले रहे हैं वो सेरेबलम से निकल के आते हैं. जो सोच रहे हैं वो तो सोच ही रहे हैं, बट काफ़ी चीज़ें जो हम मतलब ड्राइविंग टाइप की चीज़ें और जो हम इतना हम टाउट कर रहे हैं मशीन लर्निंग को, फेस रिकग्निशन वगैरह, वो तो हमारा सेरेबलम ही कर लेता है. और ज़्यादा कंप्यूटेशन हमारा ब्रेन सेरेब्रम में करता है. तो कंप्यूटेशन इज नॉट प्रोपोर्शनल टू इंटेलिजेंस एज फार एज आवर ब्रेन गोज. तो वाई शुड वी एक्सपेक्ट कि अगर हम कंप्यूट ही बढ़ाते चले जाएं तो मशीन्स विल गेट मोर इंटेलिजेंट एंड सरपास अस. तो देयर इज समथिंग एल्स गोइंग ऑन. तो इट्स नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड. बट टू द पॉइंट ऑफ लाइक AGI आएगा तो क्या होगा, मुझे तो लगता है लाइक एट ऑल पॉइंट्स ऑप्टिमिस्टिकली हम उसको करते ही रहेंगे कंट्रोल. इट्स लाइक फायर, मतलब हम हार्वेस्ट करते रहेंगे उसको एंड वी विल इम्प्रूव विद इट. लाइक आई डोंट थिंक इट कैन टेक ओवर. कुछ चीज़ों में इट हैज़ गॉन आउट ऑफ हैंड क्योंकि हमारे मेट्रिक्स गलत हैं, ऑब्जेक्टिव्स गलत हैं. एड रेवेन्यू अगर ऑप्टिमाइज करना है तो कुछ चीज़ें गिव अप करनी पड़ेंगी. बट लकीली और अनलकीली पूरी दुनिया का ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही नहीं है, या एटलीस्ट सब लोग अग्री नहीं कर सकते फंक्शन पे. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिज़ाइन दैट सिस्टम टू ऑप्टिमाइज टूवर्ड्स दैट फंक्शन, क्योंकि वो फंक्शन ही नहीं है. तो सर लेकिन गड़बड़ यही तो, अगर अगर हमें पता होता कि जैसे सबकी वेल बीइंग हमारा फंक्शन है, फिर तो पावरफुल टेक्नोलॉजीज कैन सर्व. बट बिकॉज जैसे न्यूक्लियर वेपन्स बन गए एंड दे कैन बी यूज्ड फॉर पीपल फॉर देयर सेल्फिश रीजंस. तो AGI इज अ वेरी इंटेलिजेंट मशीन. एंड अगर लाइक अब नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो पीपल आर स्कैर्ड. उनके पास एक AGI है जो कि बहुत क्रेजी चीजें कर सकती है, वेपन डेवलप कर सकती है, वो फिगर आउट कर सकती है कि क्या कौन से राइट टाइम पर एक मतलब पूरी सिटी को गैस किया जा सकता है. अदर पीपल में नॉट. तो वो तो एक बहुत ही हो जाएगी ना, मतलब इज बेसिकली AGI इज आल्सो लाइक अ this thing of power. जैसे nuclear weapon is a marker of power, this will also become a marker of power, and it may not rule us, but people ruling it like can harm the rest of us. Because अभी भी हम तो AI का क्या ही कर रहे हैं, AI तो Facebook और Google ही चला रहे हैं, मतलब हम तो वो हैं. मेरे को तो बहुत पॉजिटिव लगता है. मेरे को लगता है कि बहुत सारी चीजें जो अभी सॉल्व नहीं हो पा रही हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगी, इतनी अच्छी जिंदगी हो जाएगी हमारी. लेट मी एग्जांपल, राइट?
इतने लोगों को छोटी मोटी बीमारियां होती हैं which might end up becoming a big issue, right? अगर तुम्हारे घर में ऐसे AI systems हैं, like literally तुम्हारे bathroom में if there is AI system which is able to recognize your signals, तुम्हारे skin का tone क्या है, like all these things, right? Which are possible because जैसे तुमने वो जो फोटो मैच जो होता है वो टेक्निकली तुमने इमेज प्रोसेसिंग की बताई थी, राइट? वो सब चीज चेक करके यू डोंट इवन हैव टू गो टू डॉक्टर, लाइक दे जस्ट टेक ऑल ऑफ दैट इन एंड देन tells you exactly when you are actually hitting that issue rather than like just sitting on it for like 4 years and then realizing Yes. like things are out of hand. So I'm actually pretty positive about this. Yeah. मुझे ये भी लगता है especially in terms of like scary part इसलिए लोगों को लगता है ना, क्योंकि लोगों को लगता है कि इंटेलिजेंस डेवलप हो जाएगी और उसपे उसके करेक्टिव मेजर्स डेवलप नहीं होंगे, इसलिए लोगों को लगता है। जैसे आज के टाइम में इतना जो हल्ला मच रहा है कि तुम इलेक्शन में कचरा कर दे रहे हो, ये वो फलाना ढिमका, राइट? इसलिए लग रहा है क्योंकि लोगों को लग रहा है कोई मेजरमेंट कोई ऐसा इन प्लेस नहीं है which is able to identify this, so let's put rules and regulations which are actually able to make sure that सिस्टम रहेगा, सिस्टम नहीं हटने वाला। जब एक बार सिस्टम AI की बन गई तो रहेगा ही रहेगा। It's just like we have to have corrective measures in place जो उसको कंट्रोल कर पाए। So that's how I think about AI कि अगर मान लो diverse like ऐसा कुछ general intelligence बन जाएगा, I'm pretty sure the people who are gonna make it, like they will make sure that those systems are also in place to make sure that it does not hurt humanity, right? Because most of the conversation like just after innovation happens is how do we control that innovation, right? Like that you can go back to like टीवी के बारे में भी था कि अरे टीवी आ जाएगा तो सब लोग कुछ भी करने लगेंगे, राइट? ये होता था ना पहले, पूरे कल्चर को बर्बाद कर देगा। लाइक देन देयर वाज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी, राइट? हम लोग बात करते नहीं है इस बारे में, बात करते नहीं है, बट इन सब इन्वेंशंस के इम्पैक्ट रहे हैं। जैसे रेडियो की वजह से जो हिटलर का मेन प्रोपेगेंडा मशीन वो रेडियो था, ही वाज एबल टू डू इट रियली वेल बिकॉज देयर वाज रेडियो एंड मॉडरेशन कंट्री के अंदर होता था, गवर्नमेंट उसकी थी, तो वो कुछ मर्जी बोले रेडियो पे। पीपल वर लिविंग इन एन ऑल्टरनेट रियलिटी देयर and they were seeing world completely differently. Like we had to pay the consequences of radio because of that, and we are paying the consequences of all new innovations. But the thing is like you always talk about net positive, right? You don't talk about one pocket in general. Obviously there will be people who get impacted severely negatively and there will be people जो बहुत ज़्यादा positively impact हुए हैं, बहुत ज़्यादा wealth create कर रहे हैं उनके लिए and all that. But the way I think about this is what is the average impact of all of this, right? Is it net positive? रेडियो के बारे में भी तुम बोल सकते हैं इट इज नेट पॉजिटिव बिकॉज नाउ पीपल आर एबल टू लाइक लर्न मोर। उस टाइम में न्यूज काफी तेजी से फैलने लगी थी। अगर तुम्हारे मान लो कि मानसून की बात होती थी पहले, राइट? नाउ में लोगों को पता ही नहीं था कि कब मानसून आएगा, राइट? तो वो गेस करते थे कि आने वाला है, कितने लोगों की फसल बर्बाद हो जाती थी। जो रेडियो इन्वेंट हुआ उसका पहला यूज केस तो वही था ना कि लोग ये बोलते थे कि अरे वेदर ऐसा होने वाला है भाई, अपना तैयारी कर लो करके। तो नेट ओवरऑल पॉजिटिव हो, दैट्स व्हाट आई केयर अबाउट। देयर विल बी पॉकेट्स वेयर पीपल गेट इंपैक्टेड, दैट हैपेंस विद एवरीथिंग इन एनीथिंग। टेक्नोलॉजी में वो जैसे वो तालिब कहता है टेल रिस्क भी देखनी चाहिए, जहाँ पे मतलब अगर ब्लो अप रिस्क है, जैसे अब न्यूक्लियर वेपन्स में रिस्क है कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलती से ही कोई बटन दब जाए तो खत्म हो सकता है, तो वी आर काइंड ऑफ वन प्रेस अवे। तो उसी तरह उस तरह की रिस्क अभी एआई में नहीं है बट हो सकती है। तो रेडियो कुड नॉट बी हार्मफुल इन द वे कि एआई कैन बी। तो आई अंडरस्टैंड कि आई जस्ट वांट टू ब्रिंग अप पैरेलल थिंग। एक्चुअली एक और होता है कि I mean, humans are serving एक पर्पस से जो भी कर रहे हैं। I mean, if we are able to create a machine जो कि better तरीके से वो सब कर लेगी, then what's the really point of human beings anyway? So, like, then, you know, I mean, if the machine can do it better, then even if humans rest, then क्या point क्या है? Then तेरा मतलब like economy चलाना human purpose क्या है? जॉब्स ह्यूमन के लिए जॉब्स तो ह्यूमंस ने क्रिएट किया ना। इट्स नॉट समथिंग कि वो लाइफ लॉन्ग करना है, मतलब वो तो एक बना दिया है चीज जो कि करना है जिससे लोग की एम्प्लॉयमेंट और लाइक यू नो अर्निंग्स का सोर्स होता है। बट इफ योर थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ थ्रू अदर मींस, तो यू डोंट हैव टू वर्क। आई मीन इट्स नॉट अ ये कोई लॉ ऑफ नेचर थोड़ी ना है कि एम्प्लॉयमेंट चाहिए ही चाहिए। तो आई मीन so there is this thing for sure. So that is possible through controlled AI, जो I think Malla sir is also pointing out कि अगर it doesn't get exaggerated. But also I would like to say कि there is a real possibility कि things can just जो like you know one controlling power से, or if there is a complete generalized AI, so then humans are not a factor at all. Like then like you know just यहाँ पे जिसके पास जो controlling power है, he or she is like really determining the outcome for others. Or if there is a generalized AI, then it is just trying to optimize its equation, and then humans are not a consideration in that sense. I think Musk had given a very good quote around it. कि
if you want to build a train and like एक ant hill है, we just go through it. It's not that we want to kill ants. It just happens that we end up killing them for the sake of some other optimization.